Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you in Legend Institute of Management and Sciences, and this is your lecturer Amreen Ayaz Khan. Well, your course is Communication Skills, and this is your lecture number 2, Effective Communication. Well, dear student, in our previous lecture, we have discussed about what is communication, what's the difference between communication and effective communication. Then we talked about the characteristics of communications, जिसमें हमने देखा कि उसकी characteristics क्या होती हैं कि मैसेज क्लियर हो, करेक्ट हो, कंप्लीट हो, प्रीसाइज हो, रिलायबिलिटी हो, कंसिडरेशन ऑफ रेसिपेंट हो एंड सेंडर कर्टेसी. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें हमने तमाम स्किल्स को डिस्कस किया. My dear student, today we are going to talk about the benefits of effective communication. कि effective communication के क्या benefits हैं. For today's manager, आजकल कोई भी manager हो, CEO या कोई भी professional हो, good communication plays an essential role in their success in the workplace and in their personal life. Leaders who know how to communicate effectively with those around them will see better productivity and improve relationships in every aspects of their life. Effective communication involves knowing how to listen attentively, कि किस तरह से दूसरे शख्स को attentively listen करना है. And it is the ability to offer empathy, open-mindedness and helpful feedback based on what you hear. Also, friendly confidence, quality of non-verbal communication will also help you as a manager, as a good professional, develop good relationship with the members of your team. So let's explore some benefits of effective communication, which we are going to discuss today. The very first is building trust. What is building trust? Effective communication fosters trust with others. Your ability to listen attentively and embrace different point of view help others trust that you are making optimal decision for everyone in the group. As you serve as a role model, this trust will extend to your team and they will feel as though they can trust their teammates to fulfill their duties and responsibilities. कि effective communication के through ही trust build up होगा. This trust will be built up and you can feel more confident और आपके जो teammates होंगे वो आप पे trust करेंगे और आप अपनी ड्यूटीज़ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वेल मैनर्डली परफॉर्म कर सकते हैं. Our next point is preventing or resolving problems. The ability to communicate effectively plays a large role in resolving conflicts and preventing potential ones from arising. The key is to remain calm, make sure all parties are heard and find a solution that is ideal for everyone involved. ठीक है, जब कम्युनिकेशन आपकी इफ़ेक्टिव होगी वो आपको प्रॉब्लम से बचाएगी. एंड इफ़ देयर आर एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो उसको रिजॉल्व करने में भी इट वुड बी प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रोल. थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग क्लैरिटी एंड डायरेक्शन. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंड इन्हांस दो स्किल्स कि वो स्किल्स एक क्लैरिटी देती हैं आपकी कम्युनिकेशन को और एक डायरेक्शन देती हैं. विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल यू आर एबल टू डिलीवर क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्जेक्टिव फॉर योर टीम. अपनी टीम के लिए आप क्लियर एक्सपेक्टेशंस दे सकते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द गोल्स, एंड दिस इन्वॉल्व फाइंडिंग करेक्टिव कंस्ट्रक्टिव वे
This involves finding constructive way to point out when something isn't working as well as providing helpful feedback to get people back on track. ठीक है, आप लोगों को जो है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनको इफ़ेक्टिवली जो है वो उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपने कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं. दे विल अंडरस्टैंड देयर स्पेसिफिक टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वो अपने टास्क को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो ईजीली अंडरस्टैंड करेंगे एज वेल एज दोज ऑफ देयर टीममेट विच विल हेल्प एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन्स. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट्स बेटर रिलेशनशिप. के इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक फ़ायदा हमें ये होता है कि वो एक अच्छे रिलेशनशिप को क्रिएट करने में हमें हेल्प आउट करता है. गुड कम्युनिकेशन ऑल्सो इम्प्रूव्स रिलेशनशिप बोथ विद एम्प्लॉयज़ एंड इन योर पर्सनल लाइफ. कि वो जो रिलेशनशिप आपके एम्प्लॉयज़ के साथ हैं, आपके कलीग्स के साथ हैं, या आपके पर्सनल लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, उन सब को अच्छे से इम्प्रूव करता है. लिसनिंग केयरफुली एंड ऑफरिंग क्वालिटी फीडबैक्स हेल्प्स पीपल टू फील हर्ड एंड अंडरस्टूड. और लोगों को पता चलता है कि हमें सुना गया, हमारी बात को सुना गया, हमें समझा गया. एंड दिस इन रिटर्न नर्चर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट. और इन द एंड क्या होता है कि दोनों में, रिसीवर में भी और लिसनर में भी, दोनों में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो इन्हांस होता है. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजेज इंगेजमेंट्स. With people feeling more confident in their work and in their understanding of what they need to do, they become more engaged with their works as a whole. कि जब लोगों को पता होता है कि हमने क्या करना है, they know their responsibilities, they know their job description, तो वो अपने काम को अच्छे से करते हैं. According to recent study exploring the psychology of employee engagement, only 15% of adult employees are engaged with their employers. By prioritizing effective communication, you can increase engagement and thus boost satisfaction among your team members. Our next benefit is improves productivity. कि effective communication productivity को improve करता है. How? When team members understand their roles, the roles of others and your expectation, they can focus more on their work and less on their workplace issues. कि जब टीममेट को पता होता है कि हमारा काम क्या है, what is our role and what is the expectation of our employees and our bosses, कि दूसरे हमारे जो है वो एम्प्लॉयर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, तो वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व क्विकली. एम्प्लॉयज़ कैन बेयर एंड मैनेज देयर वर्कलोड एंड डिस्ट्रैक्शन. कि अगर उन पर वर्कलोड आता भी है तो वो दूसरों से शेयर करके उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं. एंड डिस्ट्रैक्शंस आर मिनिमाइज. जितनी भी डिस्ट्रैक्शन होती हैं जो उनको उनके काम से हटाती हैं वो कम से कम होती हैं विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. These benefits contribute to their productivity for you and your team. Our next benefit is promotes team building. Promotes team building. With improved communication, team members will be better able to rely on each other. उनके अंदर एक एतमाद और ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है. यू विल नॉट हैव वन टीम मेंबर फील एज दो दे हैव टू कैरी द इंटायर ग्रुप. दिस इम्प्रूव डिवीजन ऑफ लेबर विल इंकरेज पॉजिटिव फीलिंग and relationships between the team member which lead to improved morale and work experience. कि इससे उनका जो मोरल भी इम्प्रूव होता है और उनका एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता है. पॉजिटिव फीलिंग जो वो जनरेट होती है, इनकरेज होती हैं. गुड रिलेशनशिप इनकरेज होता है. गुड कम्युनिकेशन स्किल कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नर्चरिंग पॉजिटिव वर्क एक्सपीरियंसेस फॉर योर इंटायर टीम. एज पीपल फील लिसन टू एंड अंडरस्टूड बाय यू. तो लोग ये समझते हैं कि ठीक है, हमें रिस्पेक्ट मिली, हमारी बात को सुना गया है, समझा गया है. यू नेचुरली इम्प्रूव योर वर्क इन्वायरमेंट. और इन तमाम सिचुएशन में वर्क इन्वायरमेंट जो है वो इम्प्रूव होता है और आप में लीडरशिप स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, इंक्लूडिंग योर कम्युनिकेटिंग स्ट्रैटेजीज. टेक अ लुक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन
आपने इन तमाम बेनिफिट्स को दोबारा से जो है वो समझना है, देखना है, रिवाइज करना है, एंड आई होप दैट यू वुड गेट ऑल द पॉइंट्स क्लियरली और आप इनको फॉलो भी करेंगे. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था इस चैप्टर के कि हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे, और जब हम मीडियम की बात कर रहे थे सो आई मेंशन कि ये मीडियम क्या है, ये चैनल क्या होता है, इन सब बातों को हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में डिस्कस करना है. आई होप दैट यू हैव लर्न दैट व्हाट कम्युनिकेशन is, what is effective communication. So communication cycle या process of communication basically involves the conveying and receiving of message. कि बेसिक जो प्रोसेस है वो यही है कि एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है, मैसेज कन्वे हो रहा है और मैसेज रिसीव हो रहा है, एंड देयर आर टू इंडिविजुअल्स और एंटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट. कि फॉर्मेट जो है वो ऐसा हो जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो. आवर एबिलिटी टू असाइन वैल्यूज, साइंस एंड सिंबल्स मेक अस डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स ऑन अर्थ. कि यही हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल की जो सलाहियत है, अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है इस सलाहियत से. यही वो सलाहियत है जो कि इंसान को तमाम जानदारों में अशरफुल मखलूक़ात बनाती है. ऑथर्स एंड प्रोफेसर्स लाइक विजुअल नोश हरारी अपनी बुक में वो बताते हैं, एंड द बुक नेम इज़ सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, laid emphasis on the importance of language in making human the smartest animal on this planet. Okay, humans are the smartest animal on this planet. Thanks to communication that we are now able to do many things that were unimaginable to our cave dwelling ancestors. कि पहले ये बिल्कुल ही हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे. जिन डिस्कवरीज़ को, जिन जो है वो तरक्कियों को आज की दुनिया में मुमकिन बनाया गया. Language was developed as a means of surviving and thriving, and that is true even in present times. You may be an acclaimed artist, programmer, engineer or business person and excel in your field. But if you can't communicate effectively, you won't be able to thrive. You won't be able to be a successful person. आप कभी भी एक कामयाब प्रोफेशनल नहीं बन सकते until or unless you have good communication skills. So now we are going to discuss communication process. Communication process starts with the formation of ideas by the sender, who then transmit the message through a channel or medium to a receiver. कि सेंडर एक चैनल और मीडियम के थ्रू अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है. This is the whole process of communication. As far as the elements of communication process are concerned, there are 7 important elements of communication process, and one by one we are going to discuss all these elements in our lecture today. So the very first is sender. The process of communication starts with the sender. Sender ही वो person है जिससे communication का process जो है वो start होता है. This is the entity that will use the means of communication to share the thought. Sender ही अपनी thoughts को share करता है. The sender starts the communication cycle by deciding to convey her thoughts and chooses the format to use. कि उसी का ही डिसीजन होता है कि वो अपने थॉट्स को, अपनी आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर करे. फिर वो अपना फॉर्मेट यूज़ करता है कि किस फॉर्मेट को उसने चूज़ करना है अपने इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए. द senders manage her thoughts, seeks clarity and decides what exactly she wants to put forth. कि वो ये सोचता है कि उसने क्लैरिटी के थ्रू ही अपना मैसेज कन्वे करना है और क्या शेयर करना है वो ये भी डिसाइड करता है. द सेंडर नीड्स टू गैदर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड रेलिवेंट आइडियाज़ इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट. अब कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कम्युनिकेट करने से पहले ही वो अपना इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड
इंफॉर्मेशन है, जो रेलिवेंट आइडियाज़ हैं, उनको कलेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ राइटर बिगिंस विद एन आइडिया एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू अ book. Second point is encoding. Encoding. What is encoding? Encoding is the step in the process of communication where the sender decides how she wants to convey her thought. कि किस तरह से उसने अपने थॉट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है. Selecting the right words, associated symbols in verbal communication. फिर हमारे पास जेस्चर्स हैं, टोन, साउंड्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर वेज ऑफ इनकोडिंग अ थॉट. ये तमाम जो है तरीक़ेकार हैं जिसके थ्रू एक सेंडर अपनी थॉट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेज को इनकोड करता है. टू मेक इनकोडिंग ईजियर इट इज़ इम्पेरेटिव टू नो हु इज़ द रिसीवर. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अपने रिसीवर को जो है हमने माइंड में रखना है कि वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसका कैलिबर कितना है. ये सारी बातें माइंड में रखनी है. फॉर एग्जांपल, रस्किन बॉन्ड राइट clean and short sentences that invoke visual to instill wonder among his reader children. Next point is message. What is message? कि अब मैसेज क्या देना है, वो क्या बात है, क्या पॉइंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन है, क्या फीलिंग है जिसको शेयर करना है. अ मैसेज इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द सेंडर डिसाइड्स व्हाट शी वांट टू पुट फोर्थ एंड हाउ शी वांट्स टू कन्वे इट. कि उसने क्या शेयर करना है और कैसे शेयर करना है. इट इज़ नोन एज इनकोडिंग. द नेचर ऑफ द मैसेज कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द medium you use and audience of which is meant. Always remember that for communication to be useful, it is important that the listener or reader understand the message. कि ये बात बहुत important है कि आपका रीडर अगर तो रिटन कम्युनिकेशन है और आपका लिसनर इफ़ इट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, क्या दोनों में ही आपका रीडर और आपका लिसनर जो आपके मैसेज को अंडरस्टैंड करे. नेक्स्ट इज़ चैनल. कि चैनल क्या होता है, इसको चैनल भी बोलते हैं एंड द अदर नेम इज़ मीडियम. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको मीडियम भी बोला जाता है और चैनल भी बोला जाता है. इन ऑर्डर टू बेटर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वन हैज़ टू पे क्लोज अटेंशन टू वन क्रूशल व्हील ऑफ साइकिल. और ये जो इस कम्युनिकेशन साइकिल का व्हील है वो है चैनल और मीडियम. दिस स्क्रीन दैट यू आर रीडिंग, जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है. द न्यूज़पेपर दैट स्लाइड इज़ एवरी मॉर्निंग, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, थ्रू योर डोर. द टेलीविज़न यू वॉच योर फेवरेट मूवीज़ और ऑन ऑल आर द मीडियम. ये सारे के सारे मीडियम्स हैं. ठीक है, इस टाइम आप यूट्यूब के थ्रू मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, ठीक है, ये वीडियो सुन रहे होंगे मोबाइल के थ्रू. ये आपका क्या है, चैनल है, ये मीडियम है. इट्स इम्पेरेटिव to consider the medium used for information transmission while encoding the message or it's failed to reach the audience effectively. Our next point is receiver. ठीक है, अब सेंडर ने इनकोडिंग की, मैसेज चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंच गया. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ रिसीवर टू लैंड एंड ईयर. ठीक है, सुनने वाला जब तक नहीं होगा तो आपका मैसेज कम्युनिकेट ही नहीं होगा. ठीक है, आप खुद से अकेले में कैसे बातें करोगे, कैसे वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा. वेन एवर ए सेंडर राइट्स और सेज और साइंस और एक्सप्रेसेस एनीथिंग, इट्स मेंट टू बी रेड और experienced. The receiver is a crucial part of this process. ठीक है, विदाउट रिसीवर ये प्रोसेस जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता. द रिसीवर गैदर्स द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड और ब्रॉडकास्टेड बाय द सेंडर एंड बिगिंस टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, जैसे ही उसको मैसेज मिलता है वो उसको समझने की कोशिश शुरू कर देता है. वी टेक टर्न्स बिटवीन बीइंग अ सेंडर और बीइंग अ रिसीवर. यू आर रिसीवर व्हेन यू वॉच अ मूवी. ठीक है, अब आप जो है वो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, सो यू आर रिसीवर एंड आई एम द सेंडर. एंड अ सेंडर व्हेन यू टेल योर फ्रेंड हाउ द मूवी वॉज. ठीक है, जब आप मूवी देख रहे हो आप रिसीवर हो, और जब आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि मूवी कैसी थी, देन यू आर द सेंडर. आई एम डिलीवरिंग योर लेक्चर, सो आई एम द सेंडर, और आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, यू आर द रिसीवर. और जब
डिस्कशन क्लासेस में जब हम डिस्कस करेंगे, अपना फीडबैक दोगे, अपने प्रॉब्लम मुझसे शेयर करोगे, एट दैट टाइम यू वुड बी द सेंडर एंड आई वुड बी द रिसीवर, ठीक है। तब हमारे रोल जो वो स्विच हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो वो डी कोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। व्हाट इज डी कोडिंग? नो मैटर हाउ वेल द मैसेज इज क्राफ्टेड और इनकोडेड, इट विल फेल टू मेक एन इम्पैक्ट इफ द रिसीवर डज नॉट पोजेस द टूल टू डी कोड द मैसेज। अगर वो डी कोडिंग नहीं होगी, आपका मैसेज जो है वो फेल हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अ 9 years old may not understand the point of Harari's book। कि हरारी ने अपनी बुक में किस तरह से कम्युनिकेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था, एक 9-year-old पर्सन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। वाइल ग्रोइंग अप we also build the ability to decode various messages. Even if the word beautiful has no meaning in all the dictionaries globally, it would undoubtedly mean something different to different people. हर शख्स ही उसको डिफरेंट अंदाज से इंटरप्रेट करेगा, डीकोड करेगा, अगर उसके मीनिंग डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होंगी। We decode any message by our own mechanism, thoughts, memories and create our own meaning। ठीक है, हर शख्स जो वो उस मैसेज को अपने अंदाज से, अपनी थॉट्स, अपने मैकेनिज़्म, अपनी मेमोरीज़ के अकॉर्डिंग ही इंटरप्रेट करता है, उसको मीनिंग देता है। नेक्स्ट वी हैव फीडबैक। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में पॉइंट है हमारे पास फीडबैक। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ लॉन्ग वन। जैसा कि अभी आपने देखा, ये एक शॉर्ट प्रोसेस नहीं है। कम्युनिकेशन डज नॉट स्टॉप आफ्टर अ थॉट और आइडियाज इज एक्सप्रेस्ड और सेंटेंस और वर्ड इज अटर्ड। इट क्रिएट्स रिपल्स थ्रू टाइम लाइक अ स्टोन स्लंग्स इन अ पीसफुल लेक। जैसे कि अब हम एक झील के पानी में, जब हम एक पानी का एक पत्थर का टुकड़ा हम जब डालते हैं, एक स्टोन डालते हैं, ठीक है, तो उसमें रिपल्स क्रिएट होती हैं। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन भी रिपल्स क्रिएट करती है थ्रू टाइम्स। फीडबैक इज़ वन ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन आफ्टर अ मैसेज इज इनकोडेड, सेंट ओवर अ मीडियम, रिसीव्ड एंड डिकोडेड। देयर इज़ अ नीड फॉर द कम्युनिकेशन टू कीप मूविंग। अब ये प्रोसेस रुकता नहीं है, ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड थ्रू फीडबैक द रिसीवर बिकम्स द सेंडर। और जब वो फीडबैक देता है तो वही हमारा रिसीवर जो है वो अब वो सेंडर बन जाता है, और जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग द व्यूज़ अबाउट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज प्रेजेंट इन दिस cycle is noise. This refer to the abstraction people face while following the entire communication process. This can mean actual physical noise preoccupying thoughts of the sender or the receiver, and the barriers such as language, comfort and cognitive precision. In order to eliminate noise, one has to clear their minds, and the sender have to make sure that the message they broadcast is easy to understand for the intended receiver. अब उसमें क्या पॉइंट्स उसने माइंड में रखने हैं, कि आपका गोल क्या है, ठीक है, रेसिपेंट को माइंड में रखना है, टोन कैसी है, ये पॉइंट्स जो वो माइंड में होने चाहिए वाइल गिविंग द फीडबैक। फिर हमारा जो चैनल है वो चैनल भी उसने उसी अंदाज से ही, जिस तरह के सेंडर ने अपने चैनल को देखा था कि कौन सा मीडियम यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द रेसिपेंट्स परसेप्शंस एंड एबिलिटी। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट लेक्चर में जो आज के पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। आज जो हमने डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, एंड वील डिस्कस इन आवर डिस्कशन सेशन। थैंक यू।